بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ تینوں تقریباً 4 برس تک جارج فری مین کے اس قلعے میں رہ چکے تھے۔ وہاں کی ایک ایک بات جانتے تھے۔ ہمیں ایک دن اس قلعے کے اندر پہنچنا تھا، لہٰذا میں وہاں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے لگا اور یہ معلومات سونیا تک پہنچانے لگا۔ ہیلما نے پارس کو بتایا تھا کہ اس قلعے میں ایسے وحشی انسانوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا ہے جو دیکھنے ہی سے درندے لگتے ہیں، خصوصاً عورتوں کو دیکھ کر یوں دانت کچکچاتے ہیں جیسے کچا چبا جائیں گے۔ ان تینوں آدمیوں کے دماغوں سے پتہ چلا کہ وہ قیدی نہیں ہیں، بلکہ سلارا اور جارج فری مین نے انہیں مشین کے ذریعے غلام بنا رکھا ہے۔ ضرورت کے وقت سلاخوں کے پیچھے سے نکالتے ہیں اور اپنے دشمن کے پیچھے ایسے چھوڑتے ہیں جیسے خونخوار شکاری کتے چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ وحشی غلام جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے زندہ نہیں چھوڑتے، چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس قلعے میں ایسے ٹارچر سیلز ہیں جہاں وہ اپنے کسی دشمن کو یا اپنے کسی غدار ملازم کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچا کر مار ڈالتے ہیں۔ وہاں ایسے خفیہ میکینزمز ہیں کہ محل کے اندر کسی بھی حصے میں کسی بھی اجنبی کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ پارس نے اپنی سچی نشانہ بازی کا مظاہرہ کیا تھا اور سلارا کی گردن پر ریوالور رکھ دیا تھا اور اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، لہٰذا اس کے خلاف کوئی بھی خفیہ میکینزم کام نہیں آ سکا اور نہ ہی اسے ٹریپ کیا جا سکا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو وہ سلارا کو فوراً گولی مار دیتا۔ میں نے معلوم کر لیا کہ قلعے کے اندر کہاں کہاں کس قسم کے ٹریپ بچھائے گئے ہیں۔ وہاں ایسے مسلح افراد بہت کم تھے جو حساس دماغ رکھتے تھے اور خیال خوانی کی لہروں کو محسوس کر لیتے تھے۔ ان کی تعداد 25 تھی۔ صرف وہی افراد قلعے کے اندر ڈیوٹی کے وقت جاتے تھے، پھر باہر آ جاتے تھے۔ باقی تمام مسلح افراد کو قلعے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ وہ سب وفادار تھے۔ جارج فری مین اور سلارا کو اندیشہ تھا کہ ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسے افراد کو ٹریپ کر کے قلعے کے اندر پہنچ سکتے تھے۔ بہرحال میں نے بہت سی معلومات حاصل کیں جو آئندہ کام آنے والی تھیں۔ اب میں جارج فری مین سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب تک مجھے اس فریب میں مبتلا کر رہا تھا کہ پارس اس کی قید میں ہے اور میں اس کے بدلے آرمر کو اس کے پاس بھیج سکتا ہوں اور اپنے بیٹے کو واپس لا سکتا ہوں۔ میں اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت پومی آ گئی۔ اس نے پوچھا، کیا مصروف ہو؟ ہاں، میں بھی مصروف ہوں اور تمہیں بھی مصروف رہنا ہے۔ ہم صبح 5 بجے کی فلائٹ سے شمالی افریقہ جا رہے ہیں۔ تم ابھی جاؤ اور اپنی ضرورت کا کچھ سامان خرید کر لے آؤ۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایک طویل سفر طے کرنے والی تھی۔ جب وہ شاپنگ کے لیے چلی گئی تو میں نے سلارا اور جارج فری مین کے نمائندے کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا۔ اس نے کہا، ذرا انتظار کریں، میں ابھی مسٹر جارج کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس نے انٹرکام کے ذریعے اطلاع دی۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ سلارا ہے۔ اس نے اسے میڈم سلارا کہہ کر مخاطب کیا تھا اور کہا تھا، مسٹر فرہاد آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سلارا نے کہا، جسٹ اے منٹ، میں ابھی آتی ہوں۔ میں حیرانی سے سوچنے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ سلارا تو جنگل کی بھول بھلائیوں میں پھنسی ہوئی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ ایک لانچ میں ہے، پھر یہ سلارا کہاں سے آ گئی؟ میں نے اپنے نمائندے کے ذریعے دیکھا، وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی جسے میں اب سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھ پر اینک تھی اور وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے ریوالونگ چیئر کو اپنی طرف گھمایا، پھر اس پر بیٹھ کر اپنے نمائندے کو دیکھتے ہوئے بولی، ہیلو فرہاد، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے انجان بن کر کہا، میں بہت پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ پارس کو تم لوگوں نے قیدی بنا کر رکھا ہے۔ میں آرمر کو اسی شرط پر بھیجوں گا کہ تم یرغمال کے طور پر میرے پاس آؤ گی۔ تمہارا ذہن بہت غلیظ ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہر عورت تم پر مر مٹے گی؟ میں تمہیں مر مٹنے کے لیے نہیں، صرف ضمانت کے طور پر بلا رہا ہوں۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں اینک لگانے والی عورت سے رومانس کروں گا؟ تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ اگر میں تعریف کروں تو کہو گی پھانس رہا ہوں، اور تمہاری اینک کا بیان کروں تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ دیکھو، مجھے ہر حال میں اپنا بیٹا چاہیے اور یہ معاملہ تم سے طے نہیں ہوگا۔ اپنے بھائی جارج کو بلاؤ۔ بردر جارج ایک بہت ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، بات میں ہی کروں گی۔ میں نے پوچھا، آرمر تمہیں کب چاہیے؟ ہمیں تو ابھی چاہیے، جتنی جلدی تم روانہ کرو گے تمہارے بیٹے کے لیے بہتر ہوگا۔
मैं तुम्हारे नुमाइंदे के ज़रिए तुम्हें देख रहा हूँ, इसी तरह अपने बेटे को भी देखना चाहता हूँ। मैं उससे 2 बातें करूँगा। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो वाकई मेरा बेटा है तो मैं आर्मर को पहली फ़्लाइट से रवाना कर दूंगा। वो ज़रा हिचकचाने लगी। पारस उनके पास नहीं था। वो भला अपने नुमाइंदे के सामने किसे लाती? उन्होंने पारस की एक ही डमी बनाई थी जो हमारे पास पहुंच गई थी। मैंने कहा, मेरी तसल्ली के लिए पारस को इस नुमाइंदे के सामने पेश करने के बाद ये ज़रूर बता देना कि आर्मर को कहाँ भेजा जाए। वो बोली, दरअसल मैंने भाई जॉर्ज से इस सिलसिले में पूछा नहीं है कि हम आर्मर का इस्तकबाल कहाँ करेंगे। मैं अपने भाई की इजाज़त के बगैर कोई काम भी नहीं करती। पारस को यहाँ लाकर नुमाइंदे के सामने पेश करने से पहले मुझे भाई से पूछना होगा। डमी पारस को तो यहाँ ला सकती हो। यहाँ पारस की कोई डमी नहीं है। तुम्हारी कितनी डमीज़ हैं? मैं सिर्फ एक हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। जो स्लारा यहाँ पेरिस आई थी और मेरे बेटे को ले गई वो कोई और थी। तुम कोई और हो। मेरे हिसाब से तुम दोनों के अलावा एक और स्लारा है। हमारे एक तजुर्बाकार नजूमी ने कहा है कि वो तीसरी स्लारा असली है। नजूमियों की बातें अक्सर गलत होती हैं और अक्सर दुरुस्त भी होती हैं। हमारे नजूमी ने बताया है कि एक स्लारा पेरिस में बहुत बड़े नजूमी की गर्लफ्रेंड है। उस नजूमी ने उसे बताया था पारस यहूदी मिशनरी के हॉस्टल में मिलेगा और उस स्लारा ने पारस को वहीं से हासिल किया, फिर उसे तुम लोगों के पास रवाना कर दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं जो कह रहा था वो मुझे पारस के दिमाग से मालूम हुआ था। उसकी सोच ने बताया था कि पेरिस में उसे साथ ले जाने वाली औरत स्लारा नहीं है, और जो नजूमी उसका दीवाना बना हुआ था वो सुपर मास्टर के 2 खास नजूमियों में से एक था। उस नुमाइंदे के सामने बैठी हुई ऐनक वाली स्लारा ने कहा, तुम गैर ज़रूरी गुफ्तगू कर रहे हो, काम की बात करो। काम की बात तुम्हारे भाई जॉर्ज फ्रीमैन के साथ हो सकती है, और मैं उसके सामने भी यही शर्त पेश करूंगा कि पहले पारस को अपने उस नुमाइंदे के सामने पेश करे। मैं इत्मीनान करना चाहता हूँ। मेरी बात ख़त्म होते ही नुमाइंदे के सामने रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मिस्टर जॉर्ज लॉन्ग डिस्टेंस से गुफ्तगू कर रहे हैं, ट्रांसमीटर अटेंड किया जाए। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। जॉर्ज किले में नहीं था, कहीं दूर दराज के इलाके में था। इसका मतलब यही हो सकता है कि वो अपनी असली बहन स्लारा की तरफ गया हुआ था। सवाल ये पैदा होता था कि उसे स्लारा का सुराग कैसे मिला जबकि पारस ने ट्रांसमीटर को तोड़ दिया था। मैंने फौरन ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई और अपने बेटे के पास पहुंचकर देखा वो गहरी नींद में था। उसने दिमाग को हिदायत दी थी कि कोई गैर मामूली बात हो तो उसकी आंख खुल जाए, लेकिन मेरे आने पर उसकी आंख नहीं खुली। अभी उसका दिमाग पहले की तरह हसास नहीं था। मैंने उसे जगाया, बेटे उठो। वो फौरन ही आंख खोलकर देखने लगा, फिर उठकर बैठ गया। उसने पूछा, हेलो पापा, क्या आप हैं? हाँ मैं हूँ, मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है। जॉर्ज फ्रीमैन किले में नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस से एक डमी स्लारा के साथ गुफ्तगू कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी तलाश में निकला है। स्लारा ने उसे किसी तरह इस लॉन्च के मुतालिक बता दिया होगा। उसने फौरन जुराबें पहनी, जूते पहने। जिस कमरे में वो सो रहा था वहाँ चारों तरफ एक नज़र डाली। टूटा हुआ ट्रांसमीटर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने सोचते हुए कहा, पापा एक बात खटक रही है। जब मैं इस ट्रांसमीटर को तोड़ने जा रहा था तो इसके टूटने से पहले ही स्लारा ने लॉन्च का जिक्र कर दिया था। उसकी तफसील शायद ना बता सकी हो, लेकिन लॉन्च का लफ्ज़ सुनकर उसका भाई अपने आदमियों के साथ हमें तलाश करने लगा होगा। शायद उसने एक और हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम भी कर लिया हो। यही बात हो सकती है। तुम फौरन कमरे से निकलो और देखो स्लारा कहाँ है। वो दबे कदमों दरवाजे के पास आया, उसे आहिस्तगी से खोलकर कॉरिडोर में पहुंचा, फिर सामने वाले दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। अगर वो हैंडल पर दबाव डालकर दरवाज़ा खोलना चाहता और ज़रा सी भी आवाज़ होती तो वो चौंक कर उठ बैठती। अगर वो सो रही थी तो वो उसे सुलाए रखना चाहता था। उसी वक्त कोई आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। पारस ने चौंक कर एक तरफ देखा, फिर दबे कदमों चलता हुआ कॉरिडोर से गुजरकर लॉन्च के उस निचले हिस्से में आ गया जहां हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे। वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो पंजों के बल दौड़ता हुआ जीने पर चढ़ता हुआ अरशे पर पहुंच गया। उसने एक चाकू भी खोल लिया था। अब आवाज़ साफ तौर पर सुनाई देने लगी। वो कोई मोटर बोट थी। अब उसकी आवाज़ करीब आती जा रही थी। अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने चौंक कर अरशे के नीचे देखा। स्लारा दौड़ती चली आ रही थी और जीने पर चढ़ती हुई अरशे तक पहुंचना चाहती थी।
اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ جیسے ہی اس نے ٹارچ روشن کی، پارس نے اس کے ہاتھ پر ایک ٹھوکر ماری۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے نکل کر عرشے کے تختے پر جا گری۔ وہ چیخ کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں سگنل دینا چاہیے، وہ میرے یا تمہارے آدمی ہو سکتے ہیں، ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ میرے آدمیوں کو سگنل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام خیال خوانی سے چل جاتا ہے۔ یہ آنے والے تمہارے آدمی ہیں اور میں انہیں یہاں تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ وہ آگے بڑھ کر ٹارچ اٹھانے کے لیے جھکا۔ اسی وقت سلارا نے گھوم کر اسے ایک کک ماری۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاتھ لگنے سے ٹارچ کا رخ دریا کی طرف ہو گیا تھا اور یہ خطرے کی بات تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر ٹارچ کو اٹھانا چاہا۔ سلارا نے ٹارچ کو ایک ہلکی سی کک ماری۔ ٹارچ لڑکتی ہوئی دوسری طرف گئی۔ اب اس کا رخ دریا کی طرف سے گھوم گیا تھا۔ سلارا نے اسے دریا کی طرف رکھنے کے لیے لپک کر اٹھانا چاہا تو پارس نے لیٹے ہی لیٹے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اس کی کمر پر ایک لات ماری۔ وہ چیختی ہوئی دوسری طرف جا کر گری۔ موٹر بوٹ کی آواز بالکل قریب آ گئی تھی۔ اس کی سرچ لائٹ جنگل کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک رینگتی جا رہی تھی۔ وہ سرچ لائٹ ان درختوں پر سے بھی گزری جن کے سائے میں وہ لانچ چھپی ہوئی تھی۔ بس ایک ذرا سے سگنل کی ضرورت تھی، پھر وہ اس طرف چلے آئے۔ سلارا تڑپ کر اٹھی۔ اتنی دیر میں ٹارچ پارس کے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ بجھ چکی تھی۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ پارس نے ایک طرف ہٹ کر کہا، خبردار، مجھ سے دور رہنا، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گی، تم بہت تیز ترار اور دلیر ہو، میں تمہیں داد دینا چاہتی ہوں، تم سے محبت کرنا چاہتی ہوں، ذرا صبر کرو، شہر پہنچنے کے بعد میں ایک تصویر اتروا کے تمہیں دوں گا، تم دن رات اس سے محبت کرتی رہنا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، موٹر بوٹ یہاں سے گزر گئی ہے، سرچ لائٹ دور چلی گئی ہے، آواز بھی دور جا رہی ہے، تم کمینے ہو، کتے ہو، تو پھر میں کسی کتے کی تصویر اتروا کر دوں گا، دن رات اسے چومتی رہنا۔ اس نے ٹارچ جیب میں رکھ لی۔ وہ غصے سے اسے مارنے لگی۔ پارس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ طرح طرح سے داؤ آزما رہی تھی، اس کا کوئی داؤ چل ہی نہیں رہا تھا۔ آخر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، جب مجھے ہر طرح سے بے بس کر دیتے ہو تو مجھے تم پر بڑا پیار آتا ہے۔ عورت بے بس ہو کر ہی مردانگی کا اعتراف کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہو، چلو کچھ بھی صحیح، ہمارا جھگڑا تو ختم ہوا۔ میں نے کہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ میں نے پیرس میں ایک افسر سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، نکوگارا میں ہمارے جو جاسوس ہیں ان کی آواز سنائیے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد آواز سنائی۔ میں ایک جاسوس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، جناب فرحات صاحب، کیا واقعی آپ ہیں؟ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے اس کے سگریٹ کو ایش ٹرے پر رکھوا دیا۔ اس نے تعجب سے خالی ہاتھ کو دیکھا، پھر سگریٹ اٹھا کر کش لینا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اسے ایش ٹرے پر رکھوا دیا اور پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین آ گیا؟ او جناب، آپ ایسا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، مجھے یقین آ گیا۔ یہ معلوم کرو، یہاں سے کسی دوسرے بڑے شہر سے کسی نے ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کیا ہے؟ اور کیا وہ ہیلی کاپٹر جنگل میں پرواز کرنے کے لیے حاصل کیا گیا ہے؟ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ میں اس کے دماغ میں تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی معلومات کے لیے کیسے کیسے ذرائع اختیار کر رہا ہے تاکہ میں خود ان ذرائع کو استعمال کر کے جلد سے جلد معلومات حاصل کر لوں۔ اس جاسوس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے ساتھی سے رابطہ قائم کیا۔ اس کا ساتھی جاسوس ایک فلائنگ کلب میں تھا۔ اس نے ہمارے لیے ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے تک اس کی ڈیوٹی اسی جگہ ہوتی۔ اس کے دماغ نے بتایا کہ فلائنگ کلب میں 2 ہیلی کاپٹر تھے۔ جارج فری مین نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے فلائنگ کلب والوں سے رابطہ قائم کیا تھا اور ان سے ایک ہیلی کاپٹر بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ چونکہ ان کا پائلٹ چھٹی پر تھا اور دوسرا پائلٹ بیمار تھا، اس لیے وہ جارج فری مین تک نہ پہنچ سکا۔ ہمارے جاسوس نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے دونوں ہیلی کاپٹر ہمارے لیے ریزرو کروا دیے تھے۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو اچھی خاصی رشوت دی تھی، پھر بھلا وہ ہمارے لیے ریزرو کیوں نہ ہوتے؟ میں نے کہا، اب تم لوگ دوسرے شہروں کے جاسوسوں سے رابطہ قائم کرو۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں معلوم ہو گیا ایک شہر سے جارج فری مین نے اپنے لیے ہیلی کاپٹر حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کا بہت وقت ضائع ہوا تھا۔ وہ پچھلی رات سے مختلف شہروں کے فلائنگ کلبوں سے رابطہ قائم کرتا رہا تھا، تب کہیں جا کر آج رات اسے ایک ہیلی کاپٹر حاصل ہوا تھا۔ میں نے پارس کے پاس آ کر کہا، ذرا ہوشیار رہنا، جارج فری مین نے ایک ہیلی کاپٹر حاصل کر ہی لیا ہے۔ میں اتنا کہہ کر چلا آیا۔ اس کے دماغ میں مسلسل رہنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی۔ میرا بیٹا نادان نہیں تھا،
अपने बचाव के रास्ते जानता था। इस सिलसिले में मेरी 2 जिम्मेदारियां थीं। एक तो मैं पारस का ख्याल रखूं कि कहीं वो किसी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाए जिससे निकलना उसके लिए दुश्वार हो जाए। दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं अपने कारीन के सामने उसके हालात बयान करता रहूं। उसके लिए मैंने सोच लिया, कभी कभी उसके दिमाग में जाऊंगा और उसकी खैरियत मालूम करता रहूंगा, फिर कभी पारस के दिमाग से या उसके आसपास रहने वालों के दिमाग से जो तफसील मालूम होती जाएंगी मैं उसे अपनी दास्तान के तसलसल से पेश करता जाऊंगा। लिहाजा आइए अब पारस के हालात सुनिए जो मुझे बाद में मालूम हुए और जिन्हें मैं अपनी दास्तान के तसलसल से अभी पेश कर रहा हूँ। वो दोनों अरशे पर थे। अब चांद निकल आया था। चांदनी दूर तक जंगल को मुनव्वर कर रही थी। स्लारा ने सर उठाकर मायूसी से देखा। आसमान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों तरफ के घने दरख्त उस लॉन्च पर झुके हुए थे। अगर उसके लोग हेलीकॉप्टर में आते तो परवाज के दौरान उन्हें देख नहीं सकते थे। सिर्फ एक टॉर्च ऐसी थी जिसकी रोशनी दरिया की तरफ जा सकती थी और उसी के जरिए सिग्नल दिया जा सकता था। पारस ने पूछा, क्या नींद पूरी नहीं करोगी? पता नहीं हम कितनी देर तक सोते रहे। हम जितनी देर भी सोए सुबह नहीं हुई और थकने वालों को सुबह तक सोना चाहिए। अब नहीं सो सकूंगी, नींद उचाट हो गई है। तुम इस चक्कर में हो कि तुम्हारे आदमी मुख्तलिफ जराए से यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और तुम उन्हें किसी तरह सिग्नल दे सकोगी। पारस, इंसाफ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरे दुश्मन नहीं हो तो खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कहो, क्या तुम अपने लोगों में पहुंचोगे तो मुझे अपने लोगों में नहीं जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। वो खुश होकर आगे बढ़ी। पारस ने पीछे हटकर कहा, यही खराब आदत है, जहां खुश होती हो फौरन गले का हार बन जाती हो। क्या मैं तुम्हें बुरी लगती हूं? तुम बेहद हसीन हो। सच कह रहे हो। मैं झूठ बोलकर तुमसे क्या हासिल करूंगा? तुम एक फूल की तरह बेहद खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी उम्र के कांटे मुझे चुभते हैं। ये तुम्हारे पापा तुम्हें बहकाते हैं। मेरे पापा नादान नहीं हैं। वो ऐसे वक्त मेरे पास नहीं रहते और ना हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं कि जवान औरत कभी 16 साल से आगे नहीं बढ़ती। अगर तुम्हारे जैसा जवान उम्र में ज़रा कम हो लेकिन कद में पहाड़ हो, बाजू फौलाद के हों और सीने में जवां मर्दी की बारूद भरी हो तो कोई भी औरत उसकी मुट्ठी में आ जाती है। वो पारस के गले में बाहें डालने को आई। वो पीछे हटकर बोला, क्या मैं अपने बाप को बुला लूं? वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? क्या मेरी बात नहीं मानोगे? कौन सी बात? अभी मैंने कहा था ना, मुझसे इंसाफ करो, मुझे अपने लोगों में जाने दो। मैंने कब इनकार किया है? फिर वादा करो, अगर कोई मेरा आदमी आएगा तो मुझे टॉर्च के जरिए सिग्नल देने का मौका दोगे। मैं ऐसी हमाकत नहीं करूँगा। वो उसे धकेलते हुए बोली, 2 रुखी बातें क्यों करते हो? ज़रा देर पहले कुछ कहा और अब कुछ और कह रहे हो। मैं अपनी ज़ुबान नहीं बदलता। तुम्हें सही सलामत तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन कब? पहले मेरे लोग आएंगे, हम दोनों को किसी शहर तक ले जाएंगे, फिर वहां से तुम अपने मेके चली जाओगी। तुम्हारा बाप ऐसा कभी नहीं करेगा, मुझे कैदी बनाकर रखेगा। बेटे का वादा बाप पूरा करेगा। अब नीचे चलो, मेरा जी नहीं चाहता। देखो कैसी ठंडी हवा चल रही है। ये जंगल अगरचे भयानक है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना था एक मोहब्बत करने वाली अपने महबूब के साथ जहन्नम में भी जाना पसंद करती है। मैं सोचती थी ऐसा नादान करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ इस भयानक जंगल में रहकर मालूम हो रहा है जन्नत कहीं भी आबाद की जा सकती है और वो चाहे तो कहीं भी तहजीब की जन्नत से निकाल सकती है। वो फिर करीब आई। पारस ने कहा, तुम सीधी तरह नीचे नहीं जाओगी, तुम्हें ले जाना होगा। उसने दोनों बाजुओं में उसे उठा लिया, फिर जीने पर से सबल सबल कर उतरने लगा। वहां अंधेरा था, चांद की रोशनी सिर्फ अर्शे तक थी। स्लारा जीने के आखिरी सिरे पर जानबूझकर मचल गई ताकि वो तवाज़न कायम न रख सके। फिर यही हुआ, वो लुढ़खड़ाया और उसे लिए हुए फर्श पर आ गया। वो फिर उठ ना सका। अर्शे पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। दरख्त की पत्तियां हवा की ताल पर गुनगुना रही थीं। उनमें दरिया की गुनगुनाती हुई लहरों का तरन्नुम भी शामिल था। चांद मुस्कुराकर ये सारे मनाजिर उजागर करता जा रहा था। वो अपनी रोशनी के साथ अर्शे के नीचे जीने के आखिरी सिरे तक पहुंचना चाहता था, मगर नाकाम हो रहा था। जहां तक रोशनी नहीं पहुंचती वहां भी रोशनी का असर जरूर होता है। तारीकी दूर नहीं होती मगर कम हो जाती है।
इस तारीकी में स्लारा कह रही थी, हाय मैं क्या थी और क्या हो गई। मैंने सोचा था कभी किसी मर्द को पास नहीं फटकने दूंगी। आज अपने दिल की बात बताती हूँ। मुझे तुम्हारे बाप फरहाद अली तैमूर से बहुत डर लगता था। मैंने उसका मुकम्मल रिकॉर्ड भी पढ़ा है और उसके मुतालिक दिन रात सुनती भी रहती हूँ। वो ज़िद्दी और सरकश औरतों को अपने सामने झुका लेता है। मैं उसके सामने कभी झुकना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ज़रा चुप हुई, फिर बोली, तकदीर मुझे उसी तरफ ले जा रही थी। हमने ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर ली थी। हम अच्छी तरह जानते थे कि फरहाद अली तैमूर और उसके टेलीपैथी जानने वाले साथियों से हमारा टकराव होगा। मैं दुनिया के एक एक फ़र्द पर हुकूमत करना चाहती हूँ, किसी की महकूम बनना गवारा नहीं कर सकती। मेरा मिजाज ही कुछ अजीब सा है। मेरे भाई इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वो चाहते थे जब भी कोई टेलीपैथी जानने वाला हाथ आएगा तो सबसे पहले मुझे ये इल्म सिखाएंगे, ताकि मैं कम से कम फरहाद से खुद को महफूज रख सकूं। पारस चारों शाने चित लेटा हुआ था और सोच रहा था, ये कैसा नशा है, जादू की तरह सर चढ़ कर बोल रहा है। ये पहले निगाहों के सामने थी, फिर सांसों में बसने आई और अब सर में समा गई है। ये बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है, मगर उसकी आवाज़ चांदी की घंटी की तरह कानों में बज रही है। स्लारा बोल रही थी, मैं बचपन से पढ़ने लिखने में ज़हीन हूँ। मैंने आला तालीम हासिल की है और मेरे भाइयों ने ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए मेरे दिमाग में और भी कई उलूम भर दिए हैं। वो चाहते हैं मैं किसी तरह भी फरहाद से दूर रहूं। अगर ऐसा ना हुआ तो वो मेरी वजह से कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस पर मेरे एक भाई ने मशवरा दिया, सीधी सी बात है, स्लारा की शादी फ़ौरन किसी से कर दी जाए। फरहाद की एक आदत है कि वो शादीशुदा औरतों की इज्जत करता है। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि किसी मर्द को तसव्वुर में भी अपने करीब देखना गवारा नहीं करती थी। शायद मैं अपनी किसी अंदरूनी कमज़ोरी के बायस डरती थी कि किसी के करीब जाऊंगी और उसने मुझे मुतासिर कर लिया तो क्या होगा। मैं पिछली रात से तुम्हारी दुश्मन बनी हुई थी। मैं तुमसे मुतासिर नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुमसे दूर ही रहूं, तुमसे नफ़रत करती रहूं, तुम्हें कदम कदम पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहूं, लेकिन तुमने कदम कदम पर मुतासिर किया। जिस बात से डरती थी वही होकर रही। ये कहते कहते वो हंसने लगी। हंसते हंसते उठकर बैठ गई। पारस को पहली बार महसूस हो रहा था औरत की हंसी में कितना तरन्नुम होता है। वो हंसते वक्त कितनी खूबसूरत लगती है। वो भी उठकर बैठ गया, फिर बोला, किस बात पर हंस रही हो? वो बोली, अब तुम्हारे बाप का खतरा टल गया है। अब वो मेरे भाइयों के लिए खतरा नहीं बनेगा। ज़रा तकदीर के खेल देखो, बाप से डरने वाली का दिल बेटे के पास अटक गया है। अच्छा हुआ मैंने पूरी तरह तुम्हारा दिल अपने पास अटकने नहीं दिया। इन हालात में दिल गुनाह के बाद ही दलदल में धंसता है। खुदा का शुक्र है मैं गुनाह से पहले संभल गया। इब्तदा में यही होता है। तुम्हारे जैसे समझदार लोग बहुत संभल कर गुनाह की तरफ आते हैं, मगर तुम कब तक संभलोगे? जब भी किसी औरत के करीब जाओगे तो मैं बुरी तरह याद आऊँगी, और मैं कसम खाती हूँ आज से तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और तुम्हारे इंतज़ार में किसी को अपने करीब फटकने नहीं दूँगी। फरहाद से खतरा था, वो टल गया। जब उसे मालूम होगा कि हम ज़्यादा नहीं कुछ करीब हुए हैं तो वो मुझे अपने दिल और दिमाग से निकाल देगा। पारस उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, तुम कल से मेरे पापा के खिलाफ जहर उगलती आ रही हो और मैं सुनता आया हूँ। हमारे दिमाग में टेलीपैथी के ज़रिए नफ्सियाती उलूम भी मुंतकिल किए गए हैं। मैं समझता हूँ नफ्सियाती नुक्ता नज़र से जो औरत जिससे जितना डरती है उस पर उतना ही मरती है। वो उठकर बोली, ये बकवास है। खुदा करे ये बकवास हो। तुम पापा से डरती हो और जितने हरबे तुम जानती थी वो मुझ पर इस्तेमाल कर चुकी हो, लेकिन मुझे जीत ना सकी। तुम्हें मेरी मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी का पूरा यकीन हो चुका होगा। अब कभी तन्हाई में बैठकर सोचोगी तो सर पकड़कर कहोगी, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो उसे एक तरफ से हटाता हुआ आगे बढ़कर जीने की तरफ आया, फिर उसके एक पायदान पर बैठकर बोला, औरत की दोस्ती जी का जंजाल। अगर इस वक्त कोई मर्द साथी होता तो पूरी दानिशमंदी के साथ नींद पूरी करने की कोशिश करता, मगर तुम तो नींद उड़ाने के करतब दिखाने की माहिर हो। वो गुस्से से करीब आई, फिर उसके पास बैठकर बोली, तुम मर्द नहीं हो क्या? दुश्मनों से लड़ने, उन्हें शिकस्त देने, उन्हें मार डालने और ख़तरनाक जंगलों से गुजर जाने का नाम मर्दानगी है? अरे अगर तुम चाहो तो सारी दुनिया को फतह कर लो
लेकिन अगर एक औरत को फतह ना कर सके तो कुछ ना कर सके। मेरी एक बुरी आदत है, भड़काने और जोश दिलाने से भी मैं वो नहीं करता जो दूसरा चाहता है। वो चुप रही, पेचो ताब खाती रही, उसके करीब बैठी पहलू बदलती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगी। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, फिर पूछा, क्या मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगे? ज़रूर दूंगा। तो फिर सच बोलो, मैं कैसी लगती हूँ? पारस ने उसे देखा। चांद की रोशनी जीने के उस हिस्से तक आ रही थी। स्लारा ने अपना रुख चांदनी की तरफ कर लिया। वो बोला, बाबा साहब के इदारे में हमें हर तरह की लज्जत से आशना कराया जाता है ताकि हमारी ज़ुबान किसी भी चीज़ को चखते ही उसकी असलियत को समझ ले। हमें हल्का हल्का जहर भी चखाया गया है, फिर उसका तोड़ भी किया गया है। मैंने अपने बारे में सवाल किया है और तुम जहर के बारे में बोल रहे हो। मैं यही कहने जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ जिस हद तक गया उस हद तक यकीन से कह सकता हूँ कि औरत सिर्फ माँ और बहन नहीं होती, जहरीली नागिन भी होती है। अच्छा, तो मैं नागिन हूँ? हाँ, तुम में जहर भरा हुआ है। तुम बेहद हसीन हो, सर से पांव तक जवानी का जीता जागता इश्तहार हो। तुम्हें देखकर छूने और छूकर पकड़ने को और पकड़कर जकड़ने को जी चाहता है। मेरी इतनी तारीफ़ें कर रहे हो, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दी है और मेरी परवरिश करने वालों ने बचपन से ये समझाया है कि हर काम अपने वक्त पर मुनासिब होता है। जो काम वक्त से पहले होता है वो आगे चल कर नुकसान पहुंचाता है। जब औरत होश उड़ाने लगती है तो किसी की नसीहत याद नहीं आती। तुम्हें ऐसी नसीहतें कैसे याद हैं? देखो, जब गर्द उड़ती है या आंखों के पास से कोई भी चीज़ गुजरती है तो आंखें अचानक ही बंद हो जाती हैं। हम उन्हें दानिस्ता बंद नहीं करते, ये कुदरती अमर है। खतरे के वक्त बाज़ हसास लोगों की छठी हिस्स चौंका देती है। मुझे भी मेरी छठी हिस्स चौंका देती है। ऐसे में मुझे वो हर नसीहत याद आ जाती है जिस पर अमल करते हुए मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, सलामत रह सकता हूँ, सेहतमंद रह सकता हूँ। जिस्मानी और जहनी लिहाज से कुदरती तौर पर मेरे बढ़ने, चलने और फूलने की उम्र है। मैं किसी औरत के जहर से खुद को सुकड़ने नहीं दूंगा। वो उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, तुम फौलाद जैसे मुस्तहकम लहजे में बोलते हो और जो जो बोलते हो वही करते हो। मैं बात बात पर तुमसे मुतासिर होती जा रही हूँ। ये तस्लीम कर रही हूँ कि अभी जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस। पारस ने हंसते हुए कहा, मैं 20 बरस के दौरान आसार कदीमा में दिलचस्पी लेता रहूँगा ताकि तुम बूढ़ी हो जाओ तो तुम्हें दिलचस्पी बरकरार रहे। वो हंसते हुए बोली, बस इसी तरह जिंदा दिल रहो। तुम्हारी हर अदा, हर बात अच्छी लगती है। मैं जो बात कहता हूँ तुम्हारी अच्छाई के लिए कहता हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए सो जाओ। क्यों ना हम इस सीढ़ी के एक एक पायदान पर लेट जाएं? अगर अचानक कोई जानवर आ गया तो हमें यहाँ से भागकर कॉरिडोर वाले कमरे में पहुँचने में वक्त लगेगा। जानवरों से मुकाबला करने या उन्हें दूर भगाने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही दूर कहीं से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों सर उठाकर तवज्जो से सुनने लगे। वो जीने पर खड़े होकर बोली, आओ अर्शे पर चलते हैं। वो उसके साथ चलते हुए बोला, तुम फजूल सी कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारे आदमियों को सिग्नल नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें इसकी इजाज़त दूंगा। अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि हेलीकॉप्टर वाले परवाज़ के दौरान इस लॉन्च को देख सकते हैं या नहीं। अभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ दूर ही थी। शायद वो दूर ही दूर कहीं चक्कर लगा रहा था। दरख्तों के उस पार कभी कभी दूर हल्की सी चमक दिखाई देती थी, फिर ओझल हो जाती थी। यानी वो भी सर्च लाइट के ज़रिए उन्हें तलाश कर रहे थे। स्लारा ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा बाथरूम से आती हूँ। रुक जाओ, उस हेलीकॉप्टर को गुजर जाने दो। वो बहुत दूर है, पता नहीं कब तक चक्कर लगाता हुआ यहाँ पहुँचेगा। मैं सख्त ज़रूरत महसूस कर रही हूँ। तुम्हें एतराज़ क्यों है? भला इस बात के लिए एतराज़ कौन कर सकता है? जाओ, मगर जल्दी चली आना। हो सकता है कोई ख़तरा पेश आए तो हमें अपने लिए कुछ करना पड़े। वो अर्शे वाले कैबिन की तरफ जाने लगी। पारस तवज्जो से आवाज़ सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बतदरीज करीब आने लगी। सर्च लाइट की रोशनी इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही थी। वो तेज़ी से चलता हुआ जीने के पास आया, फिर वहाँ दुबक कर बैठ गया।
یہ بات یقینی تھی کہ انہیں ہیلی کاپٹر والے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھنے درختوں نے انہیں لانچ کے ساتھ اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز قریب آ گئی۔ اب وہ لانچ کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا۔ کبھی کبھی سرچ لائٹ کی روشنی درختوں کی پتیوں سے چھن کر لانچ تک پہنچتی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔